हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे गीता हरिहरन। इन्होंने लिखी है गाजर हलवा शॉर्ट स्टोरी। सो ये MEG7 है, ब्लॉक 6 है, शॉर्ट स्टोरी यूनिट 5 है। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट नाउ। Gita Hariharan grew up in Bombay and in Manila. She was educated in these two cities and later in the United States, where she worked in public television. Since 1979, she had worked in Bombay, Madras, and New Delhi, first as an editor in a publishing house, then as a freelancer. Gita Hariharan has published several short stories in magazines and journals. The Art of Dying and Other Stories contain 20 of her short stories. तो ये collection of stories है, The Art of Dying and Other Stories में. हर 2 नॉवेल्स, यहाँ तो 2 नॉवेल्स दिए हैं लेकिन नाम जो है ना उन्होंने 3 के बताए हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हाँ 3 हैं इसमें ना. द 1000 Faces of Night and Where Dreams Travel, The Ghosts of Vastu Master, The 1000 Faces of Night, her maiden novel, won her the prestigious Commonwealth Writers Award for 1993. She has also edited A Southern Harvest, a collection of short stories translated into English from 4 South Indian languages. She lives in New Delhi with her husband and 2 sons. अब ये इन्होंने लिखी है गाजर हलवा. गाजर हलवा इसका हम डिस्कशन करते हैं. दिस स्टोरी इज़ अ मूविंग अकाउंट ऑफ यंग पेरुमाई's लाइफ इन सेलम एंड आउट ऑफ इट. ये एक ऐसी लड़की की कहानी है ना जो कि मद्रास में सेलम में रहती है जब वो छोटी होती है, लेकिन जब वो बड़ी होती है ना, थोड़ी सी बड़ी होती है, तो वो क्या है, दिल्ली चली जाती है काम करने के लिए. मतलब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि उसको दिल्ली जाना पड़ता है और वहाँ वो कैसे कैसे काम सीखती है, ये सब इसमें बताया गया है. और गाजर हलवा जो है ना, गाजर हलवा एक तरह से सिंबल है. वो जैसे गाजर का जब हम हलवा बनाते हैं ना, तो उसमें पानी वो अपने में चूस लेता है, शुगर डालते हैं या ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, वो सब रस ना उसमें आ जाता है, गाजरों में आ जाता है. वैसे ही ये बताया गया है, जैसे दिल्ली सिटी में कोई जाता है ना, वैसे वैसे वो एब्जॉर्ब कर ले, वो सिटी जो है ना सबको एब्जॉर्ब कर लेती है. मतलब सब लोग जो है ना वो सिटी के रंग ढंग में, जिस तरह की सिटी होती है वैसे ही रंग में वो ढल जाते हैं, ये बताया गया है. दिस स्टोरी इज़ अ मूविंग अकाउंट ऑफ यंग Perumai's life in Salem and out of it. The life of her was extremely hard in Salem. The parents didn't get along. Mother was always screaming, so the father left. It didn't seem to bother his wife one bit. So वो बोलती हैं, we are well rid of him. He is a lazy drunken bastard, she said. शी वेंट टू वर्क एवरी डे. ये जो है ना, जो पेरूमाई है उसकी मदर की बात हो रही है. शी वेंट टू वर्क एवरी डे इवन ऑन डेज when she was sick or when her stomach was empty, to the highway they were building near their village. She would leave at 6 in the morning after drinking the strong sweet tea Perumai made for her. She coiled a rag on her head, एक गठरी सी बना लेती थी अपने सर पे. रेडी फॉर द बास्केट्स ऑफ ग्रेवल शी वुड कैरी ऑल डे. मतलब जो बजरी वगैरह जो भी वो सर पे ढोएगी ना, उसके लिए वो एक गोल सा सपोर्ट सा बना लेती थी. ऑन हर हिप शी हेल्ड द यंगेस्ट चाइल्ड हु वॉज स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग. वी डोंट नीड मच इमेजिनेशन टू नो द एक्सटेंट ऑफ हर लेबर टू लुक आफ्टर हर 4 चिल्ड्रन. तो अपने बच्चों के लिए उसको ये सब काम करना पड़ता था. एंड पेरूमाई, यंग पेरूमाई वुड गेट हर ब्रदर सेल्वन रेडी फॉर स्कूल, फीड हिम हिज फूड, ऑयल, कॉम हिज हेयर एंड wave at him from the door of their hut. Then, along with Thai, her baby sister, she would begin her chores for the day. Chores which included
collecting the firewood, the water queue that got longer and longer, scrubbing the clothes, hitting them again and again on the rock near the river. Her reward, उसको क्या reward मिलता है, क्या बोलते हैं लोग? That Peruma is like a little mother. Everyone said. The irony is too obvious. At an age when she should have gone to school, she was taking care of her siblings. कितनी बड़ी irony थी, है ना? And we cannot blame her mother either. She is doing whatever she possibly can, whatever the circumstances allow her to do, to keep herself and her children alive, so that they can have some rice or food, or once in a while a handful of dal in lots of tamarind water. No one could think things would get worse. They did. कोई नहीं सोच सकता था कि उसको काम मिला हुआ है, उसको कुछ अच्छा टाइम चल रहा है, चलो उसको खाने को मिल रहा है, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि टाइम बहुत ख़राब आएगा. बट ऐसा हुआ. द हाईवे वॉज बिल्ट आफ्टर 18 months ऑफ बैक ब्रेकिंग वर्क. तो हाईवे तो बन गया. नो मोर वर्क देयर आफ्टर. उसके बाद कोई काम नहीं था. द रेन्स फेल्ड for the second year, making life still harder, provisions costlier. Around the time the neighbor's cousin Chillamma was taking 5 of the village girls to Delhi with her. Was taking आएगा इसमें ना, was taking 5 of the village girls to Delhi with her. It was decided that Perumai should go too, so that she could earn something and send it home. That perhaps was the only way out. उसको भी जाना ही था चिल्लम्मा के साथ, क्योंकि उसको पैसा अर्न करना था. Perumai stuck to Chillamma like a leech on the train and didn't look at anyone's face. Then they reached her home, a small room in मुनीरका लोकेलिटी है कोई दिल्ली में. दैट स्मेल्ट ऑफ यूरिन. उसकी स्मेल आ रही थी वहाँ पे. द रूम वॉज एक्चुअली अ स्कूटर गैरेज. दैट इवन दिस स्मॉल डार्क होल विद नो टैप ऑफ वाटर एंड नो टॉयलेट. चल्लम्मा हैज़ got after years of working for the same मेम साहिब in the colony. तो उसको वो बड़ी मुश्किल से वो जगह मिली थी. स्कूटर गैरेज था वो, वहाँ पे वो रहती थी. Chillamma has no difficulty finding a job for Perumai for 200 rupees a month. 200 रुपये मंथ के मिलते थे उसको. Cooking, cleaning, washing, looking after the Baba. Perumai has to give Chillamma her mother now 50 rupees from her salary every month. जो पेरूमाई थी ना, उसको चिल्लम्मा जो अब उसकी मदर बन चुकी थी वहाँ पे, मतलब मदर ही बोलो कि वो उसने उसको काम दिलाया था, तो वो उसको 50 रुपीज़ देती थी अपनी सैलरी से. द रेस्ट शी कैन सेंड होम. ओके. एट द मिल्क बूथ, विच रिमाइंड्स हर ऑफ द फाइट्स एट द वाटर टैप इन द विलेज, पेरूमाई मेक्स फ्रेंड्स विद गर्ल्स who work in the flats in the same colony. Their mem sahibs are a lot like hers. They themselves are not very different from her. मतलब वो जो लेडीज़ जिनके यहाँ काम करती थी ना, वो उनसे मिलती जुलती थी, मतलब वो उनके जैसी ही थी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं थी. One can imagine the kind of childhood they have had and the family circumstances that have compelled them to take to this drudgery. ठीक है. तो मीन्स वैसा ही एक माहौल था. इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी इमेजिन कर सकता है किसी तरह का चाइल्डहुड उन लोगों को भी भोगना पड़ा होगा. तो सब एक जैसे ही थे वो लड़कियां जो वहाँ काम करती थी ना. गीता हरिहरन हैज़ वेरी इफेक्टिवली पोर्ट्रेट द प्लाइट ऑफ द पुअर इन रूरल इंडिया, forcing them to reach Delhi in search of a better life, in quest of a dream.
देखो गीता हरिहरन ने कितने इफ़ेक्टिवली पोर्ट्रे किया है एक पुअर बच्चे की कंडीशन को रूरल इंडिया में, है ना। मतलब वो इतने गरीब हैं कि उनको दिल्ली जाना पड़ता है काम करने के लिए, बेटर लाइफ के लिए, अपने सपनों के साकार करने के लिए। द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ टेक अवे देयर चिल्ड्रन चाइल्डहुड, देयर इनोसेंस। इतनी हार्ड रियलिटीज़ होती हैं ना, बट मतलब वो सीख जाते हैं बच्चे काम करना, है ना। द नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, दे से। नेसेसिटी, ये बोला जाता है ना कि नेसेसिटी, जब ज़रूरत पड़ती है तो कुछ भी इन्वेंट हो जाता है। नेसेसिटी मेक्स अस इन्वेंट लाइज फॉल्सहुड। अब जो है उसको ज़रूरत थी तो उसने काम किया दिल्ली में आके, लेकिन वो क्या सीख गई, झूठ बोलना भी सीख गई। इट मेक्स अस कंसील द ट्रुथ। नेसेसिटी टू फाइंड अ जॉब फॉर पेरुमाई मेक्स Chellamma tell the Mem Sahib that the girl can cook, sweep, swap, and look after children, even though she knows full well that Perumai has never cooked anything more than rice and or perhaps a handful of dal once in a while. देखो उसको पेरुमाई को जो है ना, सॉरी चेलम्मा को जो झूठ बोलना पड़ा कि पेरुमाई को तो सब कुछ आता है। टेलिंग द ट्रूथ वुड मीन गेटिंग 50 रुपीज़ लेस। अगर वो सच बता देती तो उसको पैसे कम मिलते। इट माइट ऑल्सो मीन नॉट गेटिंग अ जॉब एंड कॉन्सिक्वेंटली टेकिंग द फर्स्ट ट्रेन बैक टू सेलम। जॉब नहीं मिलती, या ऐसा भी हो सकता था जॉब नहीं मिलती और सेलम वापस जाना पड़ता। नेसेसिटी नॉट ओनली फोर्सेस पेरुमाई टू लर्न इनफ हिंदी in a few weeks but also forces her to learn how to avoid work. कितना कुछ सीख गई वो, हिंदी सीख गई, है ना, काम को कैसे अवॉइड करना है, हाउ टू स्वैप क्विकली, कैसे स्वैप करना है क्विकली, स्किपिंग कॉर्नर्स एंड अंडर द बेड व्हेन द मिस्ट्रेस इज नॉट अराउंड, और टू जस्ट स्क्वीज आउट द बेबीज स्टिंकिंग clothes with the yellow stains drying in crust on the diapers, whereas back at home in Salem she used to scrub the clothes, hitting them again and again on the rocks near the river. तो कितना कुछ वो सीख गई, हिंदी बोलना सीख गई, कैसे फटाफट से काम करना है जब उसकी मैडम वहाँ नहीं है, तो कैसे काम को स्किप करना है, कॉर्नर्स को स्किप करना है, बच्चे के कपड़ों को कैसे फटाफट से धोना है। हालांकि वो सेलम में ऐसा नहीं करती थी, बहुत अच्छे से धोती थी। Or she would steal a quick look behind her and pop bits of something or the other into her mouth. कैसे फटाफट से चोरी से खाना है। The chores she is supposed to do included peeling, grating mounds of carrots, and so it seems like to this young girl for halwa. कैसे वो मतलब गाजर को पील करती थी, ग्रेट करती थी। Scraping so many carrots leaves her arms stiff. Her fingers feel as if they will never straighten out again. And then stirring the pan of milk on the fire, round and round, scraping the sides of the pan again and again, her arms becomes numb with pain. This is an indication of the life ahead of her. Gita Hariharan has also managed to bring out the north-south contrast. The language problem to begin with. It suits Perumai in the beginning because she doesn't have to reply to Mem Sahib's questions. She can pretend not to understand her instructions or queries or just say yes or no, hoping it is the right answer. उसको बड़ा अच्छा लगता था जब उसको थोड़ा थोड़ा समझ तो आ जाता था, लेकिन वो हाँ या ना में ही आंसर देती थी और ऐसा प्रिटेंड करती थी कि मुझे तो समझ ही नहीं आया कि मैडम ने क्या बोला। Even though she quickly picks up enough of Hindi, she cannot pronounce गाजर correctly. अब अच्छा उसको हिंदी तो आने लगी थी लेकिन थोड़ी थोड़ी, लेकिन गाजर नहीं बोल पाती थी। She must call it काचर. And she is justifiably hurt when the mistress laughs at it. Her Mem Sahib calls her Prema. डिस्पाइट हर, मतलब उसको बहुत बुरा लगता था जब वो उसको बोलना नहीं ना आता था, ये गाजर को काचर बोलती थी, तो उसको बहुत हंसी आती थी उसकी मैडम को, लेकिन वो उसको बहुत गुस्सा, बहुत बुरा लगता था। फिर जो मैडम थी उसने भी उसका नाम प्रेमा रख दिया था, क्योंकि दिल्ली में तो कल्चर है ना लंबे नाम को छोटा बोलने का,
तो वैसे उसका नाम प्रेमा रख दिया था। डिस्पाइट हर एजुकेशन एंड एबिलिटी टू ड्राइव द कार शी कांट से पेरुमाई, द गर्ल आर्ग्यूज। लड़की बोलती है कि इतना एजुकेटेड है, इतना गाड़ी चलाती है, तो उसका नाम जो है वो अपना मेरा नाम नहीं बोल सकती पेरुमाई। परहैप्स पेरुमाई डजंट रियलाइज दैट इट इज़ नॉट हर मेम साहब्स इनएबिलिटी टू करेक्टली प्रोनाउंस हर नेम. It is some kind of a social convention, social custom to shorten the name of your retainer. The change in weather has also been indicated. The sun doesn't shine properly for days in Delhi. The water freezes, Perumi's fingers. In Salem, they obviously didn't have this problem with lots and lots of sun for most part of the year. The situation demands adjustment on various levels, physical, economic, emotional, मतलब उसको adjust करना पड़ा physically भी, economically भी and emotionally भी, ठीक है, सारी adjustment की बात थी। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेक्टराइजेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।